Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम जो कर रहे थे वो था टॉपिक लास्ट जो क्लास थी उसमें टॉपिक हमारा कंटिन्यू था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कर चुके थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.6 इसकी कंटिन्यू की थी, हमने स्टार्ट की थी, बेसिक्स इसका कर चुके हैं। अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.6 और इसका क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं, इसका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज dy upon dx plus secant x into y it is equals to tangent of x. We are given that x lies between 0 and pi by 2. x की वैल्यू 0 से pi by 2 तक लाई करती है। First of all, compare it with the standard form. Compare with dy upon dx plus py equals to q. On comparing it with, we find what is p. P is secant x and what is q. Q is tangent of x. In case of linear differential equation, to solve the differential equation, first of all we will find the integrating factor, and we know that what is the integrating factor. Integrating factor is e to the power integral of p dx. So it is e to the power integral of p, which is secant x dx. So it becomes e to the power integration of secant x. secant का इंटीग्रेशन होता है log of secant x plus tangent x. This is the integration of secant x. Logarithm e को न्यूट्रलाइज कर देगा, so we got the integrating factor is secant x plus tangent x. This is the integrating factor. After finding the integrating factor, we will find the solution, and the solution of differential equation is solution. What is the solution? Solution is y into integrating factor. It is equals to integration of q into integrating factor dx. ये बन जाएगा इसका solution. So y into integrating factor, which is secant x plus tangent x, it is equals to integration of q is tangent x multiply integrating factor, and integrating factor is secant x plus tangent x, and its integral. Or we got right hand side is tangent multiply secant is secant x into tangent x dx plus tangent multiply tangent is tangent square x dx. Now secant x into tangent x, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास, इट इज secant x, ओके, प्लस टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं है, टेंजेंट स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, secant स्क्वायर x minus 1 dx, और अब इसका इंटीग्रेशन है, so y into में secant x plus tangent x is equals to, this is secant x, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tangent x, 1 का इंटीग्रेशन x and plus constant of integration. So this is the solution for this given differential equation, linear differential equation. तो पैटर्न इसमें सब में यही रहेगा। सबसे पहले आपको कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज dy upon dx plus py equals to q. इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Then we will find the integrating factor, which is e to the power integral of p dx. p की वैल्यू पुट अप की, secant x इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहां log से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट द सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equals to integral of q into integrating factor dx. अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेशन आप सारा कर ही चुके हैं।
So this is the question number 4, exercise 9.6. Exercise 9.6 में ही next question number 8. 8th question is solve the differential equation which is 1 plus x square into dy plus 2xy into dx equals to cot of x dx. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 3-4 फॉर्म हमने पढ़ी। वेरिएबल सेपरेबल, जिसके वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें y अपॉन x को सब्स्टिट्यूट करते हैं v के इक्वल। दूसरी वो फॉर्म थी, और तीसरी फॉर्म थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल तो इसमें डायरेक्ट है ही नहीं, हमें साफ दिखाई दे रहा है, सेपरेट तो नहीं कर सकते इसके। अगर इसको लीनियर डिफरेंशियल, अगर हम इसको y अपॉन x में चेंज करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x into y, मान लो x को बना करते हैं y अपॉन x बनेगा तो यहाँ नहीं बन पाएगा। हर जगह पे y अपॉन x की फॉर्म नहीं बन पाएगी, तो ये उसमें भी नहीं बन पाएगी। ये बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा तो इक्वेशन को देख के ही अंदाजा हो जाता है। अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y की पावर सिंगल पावर मिलेगी आपको, y की पावर। इसमें देख सकते हैं आप y की सिंगल पावर है यहाँ पे, है ना, y की कोई और पावर नहीं है हायर, तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। अंदाजा तो यहीं से लग जाता है। चलो हम करके देखते हैं इसको। dy अपॉन dx बनाने के लिए y dy को एक तरफ रखते हैं और dx को पूरे को दूसरी साइड ले जाते हैं। इस dx को ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज cot of x minus 2xy into dx। dx की दोनों तरफ एक साइड ले जाके dx कॉमन आउट कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy अपॉन dx बनाते हैं। यहाँ पे dy था, इसे dx को डिवाइड में ले जाते हैं। सो वी फाइंड dy अपॉन dx इक्वल टू cot x minus 2xy and this is divided by 1 plus x square। डिवाइड में चला dy अपॉन dx हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए dy अपॉन dx प्लस p into y इक्वल्स टू q, यानी कि dy अपॉन dx के साथ प्लस में y की जो टर्म्स है वो होनी चाहिए। तो y की टर्म्स वहां से क्या है वो हम इस साइड ले आएंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू राइट साइड में क्या है, cot x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर y। यही है, y की टर्म को लेफ्ट साइड जाते हैं। सो वी फाइंड इट बिकम्स dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये बचेगा। नाउ कंपेयर इट विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट p इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने किया है कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट व्हाट इज p? p इज 2x upon 1 plus x square, and what is q? q is cot x upon 1 plus x square. So just after it we will find the integrating factor. What is the integrating factor? Integrating factor is e to the power integral sin p of dx। इंटीग्रल साइन p, p हमारे पास ये रहा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब अगर इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेट अस पुट 1 प्लस x स्क्वायर एज t। इसको t पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, dt अपॉन t। log t मींस इट इज log ऑफ t, और t की वैल्यू है 1 प्लस x स्क्वायर। e से लॉगरिथम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस x स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन इज गिवन एज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, it is equals to integral sin q into integrating factor and dx। so y into integrating factor है हमारे पास 1 plus x square is equals to integral sin of q। q कितना है, cot x upon, it is cot x
upon 1 plus x square into integrating factor, and integrating factor is 1 plus x square. So 1 plus x square dx. This will cancel out. क्या बचेगा? cot of x. अकेला इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? cot x. और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x का इंटीग्रेशन log of sin x. It is log of sin x plus constant of integration. यही हो जाएगा. तो यहां से बस इतना ही काफी है. चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड में ले सकते हो, अदरवाइज y into 1 plus x square is equals to log of sin x plus constant of integration. ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 9.6. 8 क्वेश्चन. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलने हैं. एक और पैटर्न है, अगर वो इक्वेशन dy upon dx में ना बने, dx upon dy plus px equal to q, दूसरी ये फॉर्म है. But this year this pattern is removed from syllabus, so we are not discussing it here. Okay, इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं. हम सिर्फ वही फॉर्म का इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं. 9.6 क्वेश्चन नंबर 13. Find the particular solution for the linear differential equation. Differential equation is dy upon dx plus 2y into tangent x, it is equals to sin x, when given that y is equals to 0 and x is pi by 3. We have to solve this linear differential equation. Particular solution of this linear differential equation. So first of all, compare it with the standard form, which is dy upon dx plus py is equals to q. This is the standard form. So we are comparing it with. On comparing, we find what is p. p क्या होगा? y का जो कोफिशिएंट है, that is 2 tangent x. p is 2 tangent x. And what is q? q is, on comparing, it is sin of x. ये बन जाएगा आपका q. Then integrating factor e to the power integral of p dx. p 2 tangent है, 2 बाहर निकाल देते हैं, tangent x dx. And what is the integration of tangent x? Integrating factor is equals to e to the power 2. tangent x का इंटीग्रेशन log of secant या minus log of cos होता है. We are taking log of secant x. लॉगरिथम में जो टर्म आ गया वो क्या बन जाती है? हमेशा पावर बन जाती है. सो वी कैन डिराइव इट लाइक दिस, e to power log of secant square x. Now logarithm will neutralize e exponential, so integrating factor becomes secant square of x. This is the integrating factor. So now what is the general solution? General solution is y into integrating factor, which is secant square x, equal to integral sin q. q is sin x into integrating factor means secant square x dx. secant को हम क्या करते हैं? एक secant को cos में चेंज कर देते हैं. y into secant square x is equals to integral sin x. secant square को 1 upon cos square लिख सकते हैं. ठीक है, स्क्वायर को एक कोस अलग लिख लेंगे और एक कोस अलग, दोनों अलग अलग लिख लेते हैं. तो कोस स्क्वायर है, एक कोस यहीं रह जाएगा और एक कोस यहां आ जाएगा, dx. और इट कैन बी रिटन अगेन एज sin x upon cos x is tangent x into 1 upon cos is secant x dx. Integration of secant x into tangent x, it is secant of x. So y into secant square x is equal to secant x plus constant of integration. Particular solution फाइंड करने के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. Let us suppose this is equation number 2 and this is the given equation number 1. To find the particular solution, find the value of constant of integration. And for that, apply the equation y is equals to 0, x is equals to pi by 3. So
put in equation number 1, put x is equals to pi by 3 and y is equals to 0 in this general solution. In the general solution means equation number 2. So we find y means 0 is equals to secant x is secant pi by 3 plus constant of integration which is c. secant pi by 3 60, secant कितना होगा 60 पे, cos क्या होता है 60 पे 1/2, तो secant 2 हो जाएगा, 2 plus constant of integration is 0 means c की वैल्यू आती है -2. Put this value in the equation number 2. So particular solution is given as y into secant square x, y into secant square x equals to secant x constant of integration is -2. अब चाहो तो इस secant square को डिवाइड भी ले जा सकते हैं, y equals to secant x upon secant square x -2 upon secant square x. So y is secant से secant square कैंसिल होगा, नीचे secant बचेगा और उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो cos x, और इस secant square को न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये भी cos square हो जाएगा. So this is the particular solution for this given linear differential equation. linear differential equation का particular solution ये हो जाएगा. तो दोनों तरह के हमने सॉल्यूशन देख लिए, जनरल सॉल्यूशन बी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है एक्स्ट्रा, सिर्फ यही है सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कैसे आएगी, जो गिवन कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू वापस यही पुट अप कर देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.6. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसी का, 9.6 में ही 16 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट को सिंपलीफाई में करा देता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ये कहता है ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालिए जो ओरिजिन से पास होता है, मींस x is 0 y is 0. दिस इज द कंडीशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जिसके लिए कंडीशन ये अप्लाई होगी उसमें. आगे क्या कहता है, given that the slope of tangent to the curve at point xy equal to sum of coordinate of the point. slope of tangent given है, slope of tangent means dy upon dx. it is equals to किसके इक्वल given है, sum of the coordinates means x plus y. it is the slope of tangent. slope of tangent is given as sum of the coordinates. बिल्कुल सिंपल है, dy upon dx taking y on the left side minus y equals to x. On comparison with standard form we find p is -1 and q is x. p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x पुट करके इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज a to the power p dx minus 1 dx a to the power minus x. अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे. q है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो और उसमें फिर x और y की वैल्यू 0 और 0 पुट कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वापस गिवन सिचुएशन में पुट करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा. सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, y into integrating factor is equals to इंटीग्रल साइन q is x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. इसको करेंगे बाय पार्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी आइलेट, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट इसको इंटीग्रेट करो और जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. वहां पे ये वैल्यू पुट अप करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कि करा रहा हूं, इसको कंप्लीट आप लोग खुद करेंगे. इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर यहां तक ही है. दिस इज हाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका चैप्टर यहां कंप्लीट होता है. इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.